Hello dear student, in this video I am going to discuss one of the most important question came in CBSE 2008 and the chapter I am taking this question from chapter that is electromagnetic induction. What is the question? Derive an expression for EMF, current and heat dissipated if a rod of length L is rotated with omega uniform angular velocity in uniform magnetic field. Okay, so what we have to do, first of all we have to write the statement. How to write? Let us consider a rod having length L and it is rotated in a uniform angular velocity, that is omega, in a uniform magnetic field B. Okay, you can see in the figure, this is a rod having length L and it is rotated in a uniform magnetic field B with an angular velocity omega. Okay, so what is the area? Suppose the rod completes one revolution in time t. Suppose this is a rod and it take time t, capital T, to complete one revolution like that. एक revolution इसे इस तरह से मुड़ने के लिए कितना टाइम लगता है? कैपिटल T. तो ये ऐसे करके था, ये तो हमने बनाया है, एक्चुअली में ये है नहीं, ये कैसा पाथ को कवर कर रहा है, ऐसे करके है तो ये कुछ इस तरह से गोल घूम रहा है ऐसे. तो इसने, इस रॉड ने जिसकी लेंथ L है, इट इज़ रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट कवर्स अ सर्कुलर पाथ. इसकी जो पाथ कवर होगी वो सर्कुलर पाथ होगी. तो आप समझो, मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगा रॉड, तो कुछ एरिया कवर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट देयर. सो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? So first of all we have to write the formula for change. First of all we will find the change in flux. So change in flux is, flux formula is magnetic field into area. So we will write here the change in flux is B into area swept. Okay, B into area swept. So what is change in flux? That is delta phi is equal to B into change area swept. What is the area? This whole area means full cross section of this part, means this whole area it will cover. Okay, ये पूरी एरिया को कवर कर रहा है ये. और ये पूरी एरिया कैसे हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एरिया कितनी होगी? पाई, द लेंथ ऑफ द रोड इज L, सो we know the formula area is equal to pi r square. So in place of r we will write here L, so pi L square. Now you know the EMF induction formula from Faraday law, E is equal to d phi by dt or delta phi by delta t. So what is the change in flux? Change in flux is B into B pi L square. What is change in time? Since in one revolution it take time t, so time change is, final time is suppose capital T and initial time is 0. So change in time कितना होगा बताओ? t minus 0. पहले तो कोई भी एरिया नहीं कवर किया, t टाइम के बाद ये पूरा, t टाइम के बाद ये कितना एरिया कवर कर रहा है? देखो ये एरिया कवर कर रहा पूरा एरिया. तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा t के जगह में हमने एक ही रिवोल्यूशन कंसीडर किया है. ठीक है, सो t माइनस 0, सो b पाई L स्क्वायर अपॉन t and 1 by time period is frequency, so we can write here f. Now also frequency is equal to omega by 2 pi, ये भी आप जानते हो. So you can write here in place of f directly omega by 2 pi, so pi will cancel, so the formula is half b L square omega. Now in the question it is asked EMF, we had completed the EMF up to EMF part. Now we have to find the induced current due to this rotation of this rod, and current is also induced, and we know the current is denoted as I is equal to E upon R. What is R? R is the resistance of this rod. This rod having length L, it is having some resistance. कहाँ पर EMF इंड्यूस होगा? Across the end of this रॉड. EMF कहाँ पर इंड्यूस होने वाला? इस रॉड के एंड में कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. वो डायरेक्शन हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो EMF इंड्यूस हुआ है मतलब करंट भी होगा. सो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ. सो यू कैन राइट हियर I इज इक्वल टू E अपॉन R. एंड व्हाट इज E? E इज इक्वल टू B. देखो E क्या है? हाफ
यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. सो विल राइट हियर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा एंड आर इज देयर, दैट्स वाई इस आर की जगह में यहाँ आर लिख देंगे तो हमें करंट की इक्वेशन मिल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द हीट डिसिपेटेड, क्योंकि ये इस तरह से घूमने के कारण इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, तो उस करंट के कारण ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा अपने चारों तरफ, और पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है. हम जानते हैं लेंज लॉ के हिसाब से कि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. क्योंकि यहाँ देखो एरिया बढ़ रही है ना, एरिया क्या हो रही है, पहले तो एक भी एरिया स्वेप्ट नहीं थी, अब ये घूमने से एरिया बढ़ रही है, तो क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो कहने का मतलब इसमें हीट जनरेट हो जाएगा, इसमें हीट डेवलप हो जाएगा. ठीक है, हीट डेवलप हो जाएगा. तो हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या होगा, या हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर टी फ्रॉम जूल्स लॉ. सो इन प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट हियर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ आर और टी को पुट कर देंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला आएगा. ठीक है, इसके घूमने से, ऐसे करके घूमने से फ्लक्स चेंज हो रहा है. एक बार कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में 1 रोटेशन ये घूम पा रहा है. और इसमें ऐसे घूमने से, इसके ऐसे घूमने से सर्कुलर पाथ ऐसा कवर हो रहा है, तो कितना एरिया कवर हो गया, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा आपका, ये पूरा, और ये पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसलिए एरिया स्वेप्ट क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह में हम एल लिख देंगे, और इसके अक्रॉस एंड में मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी करंट भी होगा, करंट का होता है फॉर्मूला ई बाई आर. ठीक है, और करंट अगर होगा तो हीट डिसिपेटेड भी होगा, क्योंकि ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज को लेंज लॉ के हिसाब से क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है स्टूडेंट, यू कैन नोट डाउन दिस.